سے میرے جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے اور بھوک بھی بہت کم لگتی ہے. جوڑوں کے درد کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی جوڑوں کا درد نہ اس عمر میں ہوتا ہے اور نہ اس موسم میں. اچھا چلو ہاضمے کا مکسچر تو دے ہی دو. صرف ایک دن کی خوراک لے کے جاؤں گا کیونکہ کل میرے کو واپس آنا ہے یہاں پہ ایک کام سے نا. میں نے سنا ہے دوا ہمیشہ تازہ کھانی چاہیے. عمران، تم بہت اچھے انسان ہو، شریف لڑکے ہو. مجھے پتا تم صرف اس لیے یہاں آتے ہو تاکہ تم روز یہاں کے چکر کاٹ سکو، اور مجھے یہ بالکل نہیں پسند. میں بھی نا یہی کہنا چاہتا تھا. میرا مطلب ہے میں اسی طرف آ رہا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. اب میرے کو ڈر لگ رہا تھا کہیں آپ برا نہ مان جائیں. نہیں نہیں، میں نہیں برا مانوں گی، تم بولو. اچھا میری مدد کریں گے آپ؟ ہاں کوشش کروں گی، تم بولو. وہ بات یہ ہے کہ ہاں ہاں کیا بات ہے؟ میں نا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاں ہاں بولو نا. آپ نا میں آپ میرے کو نوکری دے دیں، میرے کو بہت ضرورت ہے. ارے دیوی تم بیٹھو. یقین نہیں آ رہا کہ تم آئی ہو. میں ٹھیک ہوں، تھینک یو. آرام سے بیٹھو پلیز. کیسے ہے نا؟ دراصل میرے اسکول میں فنکشن ہونے والا تھا. تھینک یو. تو بچوں نے اتنے مزے کے آئٹمس تیار کیے تھے، میں چاہتی تھی کہ تم بھی آؤ، ہمیں بہت اچھا لگے گا. آؤں گی سر. کارڈ چھپوایا اس کا؟ یہ بھی بچوں نے خود ہی بنائے ہیں. نائس. اچھے ہیں نا؟ ہاں میں ضرور آؤں گی، بلکہ امی سے کہوں گی کہ وہ بھی آ جائے. ارے ہاں انجوائے کریں گی. کیا تم سیدھی اسکول سے آ رہی ہو؟ نہیں، وہ دراصل مجھے وکیل کے پاس جانا تھا طلاق کے سلسلے میں. اچھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ طلاق لینے کے لیے کتنے مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تمہیں کیوں گزرنا پڑے گا مشکل مرحلوں سے؟ یہ کام تو وکیل کا ہے. اگر مجھے عدالت میں پیش تو ہونا ہوگا نا، ان سب الزامات کی گواہی تو دینی پڑے گی جو میری طرف سے محمود پر لگائے گئے. ایسی باتیں جو اب تک میں نے اپنے آپ سے بھی چھپائی، اپنے باپ، اپنے بھائی، سب کے سامنے بتانی پڑیں گی. میں گھر کی باتیں سب کے سامنے کیسے کروں گی؟ طلاق کے کیس میں تو اتنی الٹے سیدھے الزامات لگائے جاتے ہیں، محمود کی طرف سے بھی لگائے جائیں گے. ہاں اسی بات سے امی گھبراتی تھی. اور مقدمے پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ الگ. میں تو سوچی ہوں میں اسکول کی جاب چھوڑ کے کوئی اور نوکری ڈھونڈ لوں. کیسے گزارا چلے گا؟ مجھے ٹیچنگ بہت پسند ہے. ابھی یہ چیزیں مت سوچو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بھروسہ رکھو. تم نے کچھ کھائے؟ کھانا کھائے؟ ہاں تھوڑا سا کھایا تھا. تھوڑا سا؟ پراپر کھانا تو نہیں کھایا نا؟ مجھے بھوک نہیں ہے واقعی. میں نے بھی نہیں کھایا. ناصر بیٹھو، اور تمہیں کھانا کھائیں گے آرام سے، اور پھر میں تمہیں گھر بھی چھوڑوا دوں گی. تم فون کر دینا گھر پہ. تم بتا تو دو کہ تم یہاں پہ ہو. گھبرائیں گے نا ورنہ. کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کرنے، سب جانتے ہیں تم کتنے رحم دل ہو. میں خود اٹھا دوں.
क्या बात है, अब जब से आए चुप के बैठे हैं। मुझे भी तो बताएं क्या हुआ अदालत में। महमूद ने बात की आपसे? महमूद नहीं आया था, पहली पेशी पर वो गायब था। है? कहाँ चला गया, आया क्यों नहीं? उसके वकील ने कहा है कि वो शहर से बाहर है और 2 महीने की तारीख ले ली। कोई नहीं, आमिर ने मुझे बताया यही इसी शहर में किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है। उसके वकील ने झूठ बोला था तारीख आगे बढ़वाने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना, सिलसिला शुरू हो गया ना पेशियों का। आपसे ये नहीं होगा कि कान पकड़ के उसको लेकर आते, आज ही फैसला हो जाता। भाई कहाँ से लेकर आता उसे? ये शादी के, जमीन के, जायदाद के मुकदमात जो होते हैं ना, ये दीवानी कहलाते हैं। इतना लंबा अरसा लेते हैं कि इंसान को दीवाना कर देते हैं। अब ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। अगर मेरे निकाह के वक्त मेरी तलाक का हक दिलवा दिया होता ना, तो मैं मुकदमों में ना फंसती, लेकिन नहीं, वो तो खाना काट दिया गया था। देखे, मुझे तो इतनी समझ नहीं थी उस वक्त। अरे हटाओ, मुझे क्या खबर कौन सा खाना काटा गया, कौन सा खाना नहीं काटा गया। औरतें दखल देती हैं इन मामलात में। पढ़ा था तुम्हारा निकाहनामा? मुझे तो उस बात का ख्याल ही नहीं रहा था। मैं तो समझता था कि औरतें जो है उनको ये हक नहीं दिया जाता, भी हक नहीं दिया। अब्बू, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको क्या हो गया था? तौबा करो ज़ेबी, हमारे जमाने में इस तरह से नहीं होता था। हमारे जमाने में शादियां एतमाद के सहारे होती थी। तलाक का तो सोचना भी गुनाह था। माँ, औरत को ये हक दिलाने का ये थोड़ी मतलब है कि आप उसे तलाक के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए एतमाद होता है जो मर्द की तरफ से उसे मिलता है। अब्बू, आप सलमा के निकाह के वक्त उसे हक जरूर दिलवाएंगे। बेटा, ये बात पहले ही से मेरे ज़हन में है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। सलमा को ये हक जरूर मिलेगा। ये है, सलमा की सास तो इस दफा हमें बिल्कुल नहीं बख्शेंगी। उस औरत की आजमाइशें कभी खत्म भी होंगी कि नहीं? अब तो सलमा से ज्यादा मुझे उसकी सास पे तरस आने लगा। अरे भाई, ये गलती हम बार बार तो नहीं दोहराएंगे। सलमा की सास भी एक औरत है और एक औरत ही दूसरे औरत के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, या नहीं कर सकती? ओफो, बर्बाद कर दिया ना मेरे घर का सुकून। बहसें शुरू हो गई ना। मैंने पहले ही कहा था, अब आप दोनों बैठ जाए किताबें लेके कानून की, और उसको तीसरे वकील को भी बुला ले, अली को, उसको भी मिला ले अपने साथ। अम्मा, क्या हो गया आपको? है अंगादी हूँ मैं। समझ भारत ने तुम्हें एक मौका दिया था, वो भी तुमने गंवा दिया। जब हिना ने तुमसे पूछा था कि क्या चाहते हो, तो कहते थे कि शादी करना चाहता हूँ। ये तो कहने वाला था मैं, लेकिन हलक में एक गोला बच गया। आवाज बिल्कुल बंद हो गई, सांस ली नहीं जा रही मेरे से। तो जब गोला हलक से निकला तब क्यों नहीं कुछ बोला? यार, फिर मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। मेरे मुंह से शादी की जगह ना नौकरी निकल गया। अब मैं क्या करूं? ऐसा करो कि कुछ ऐसे के लिए हिना को भूल जाओ। हाँ, शित्वतापों पे ट्राई मारो। मेरा मतलब कोशिश करो उनका एतमाद जीतने की। वही तुम्हारे इश्क की सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसा करता हूँ, उनको दुपट्टा बदल बेन बना लेता हूँ। शर्म करो, हिना से इश्क नहीं चला तो अब उसको बहन बना लोगे? शर्म करो यार। मैं सितवा धाबा की बात कर रहा हूँ। वो साड़ी पहनती, उनको दुपट्टे से कोई लेना देना नहीं है। अब साड़ी बदल बेन तो होती नहीं है। ऐसा करता हूँ, कोई तोहफा ले जाता हूँ, उनके खजूरें और तस्बीह ले जाता हूँ। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप क्या हज से आए? ऐसा करता हूँ, जो मरीजों के बिस्तर है ना, उन पे मच्छरदानियां लगवा देता हूँ। बेचारे चैन से सोएंगे, मेरे को दुआएं देंगे। एक तो ये मरीजों की नींद से तुम्हारी शादी का क्या ताल्लुक भाई? तुम्हें तो शित्वतापा के सामने रहना है, उनका एतमाद जीतना है। एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? तो आजकल ड्राइवर की जरूरत है। मैं क्या ड्राइवर तलाश करूं? नहीं, तुम खुद ड्राइवर बन के जाओगे तो थोड़ा हुलिया बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको शक हो गया तो? क्यों होगा? लेकिन ड्राइवर बनने से मेरे को क्या फायदा होगा? सोचो, क्या?
सुबह हिना को पिक करोगे, शाम को हिना को ड्रॉप करोगे, सारा दिन शकोता आपा के सामने रहोगे, उनका एतमाद जीतोगे और फिर असली होलिये में आ जाना, उन्हें कह देना कि भाई मैं हूँ इमरान। जब तक तो तुम्हारी बात भी पक्की हो जाएगी। ये बात कुछ दिल को लग रही है ना? एक पुरानी फिल्म में मैंने बिल्कुल ऐसे ही सीन देखा था। मैंने ठीक है, अब तू बस मेरा होलिया बदल डाल और मेरे को सिफत आपा के पास भी तो तू ही लेके जाएगा ना मेरी जमानत के लिए। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 दिन दांत तोड़ने पड़ेंगे, एक आपको थोड़ा सा महंगा करना पड़ेगा। नहीं, ड्राइवर लगना है कि नहीं लगना है? तो ड्राइवर के लिए ये सब जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या, अभी तो तू खालसा में लगती है। हमें खासा बस नहीं। आखिर ये लड़का हर वक्त लेने के चक्कर में लगाता रहता है। कौन से पता पर? अरे वही इमरान, बस चिराग की तरह लंबा है, आकल उसकी टखनों में। कल मैं देखा खुद से बातें करता चला जा रहा था कि अचानक उसकी एक सतून से चक्कर हो गई। उसको चोट तो नहीं है? अरे मेरी बला से चोट आई कि नहीं, फिर खड़ा उस सतून से माफी मांग रहा था। आजकल के जमाने में इतने मासूम लोग कहाँ होते हैं सिर्फ बतापा। वैसे ये तो है, बेचारा आजकल बहुत परेशान है, उसको नौकरी ही नहीं मिल रही। तो परेशान होने की क्या जरूरत है, नौकरी ढूंढने यहाँ क्यों मंडलाता फिरता है? यहाँ काम कर। कहाँ है? यहाँ? हाँ, आपकी क्लिनिक में। यहाँ करेगा क्या, सिवाय इसके कि छत की जाले साफ कर ले। और एक फायदा है, उसके लिए बांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो ना कैसे बतापा, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, क्या कहा तुमने? तुम्हें इमरान अच्छा लगता है ना? थोड़ी देर पहले तक मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद लड़की समझती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले तक वो अब मुझे तो... भी पसंद करता हाँ? है, बस उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो मुझसे ये बात खोल कर कहे। और तुम ये चाह रही हो कि वो तुमसे ये बात खुलकर कह दे। इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार।